Good morning, students. Welcome to your physics class. Students, we are doing the charged particle moving in a uniform field. तो हमने डिस्कस किया था लास्ट डे कि if a charged particle is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field, then it will experience no force. And we are discussing second point, that is when charged particle moves right angle to the magnetic field. So yesterday we have done about this. We have concluded that the force F is equal to QVB. So we are going to proceed this topic. So as we know that when a charged particle having charge positive Q enter in a uniform magnetic field with velocity V and perpendicular to the direction of magnetic field, then force acting on charged particle. इस हमने क्या किया था, कल थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि let us suppose that we have a uniform magnetic field. This is a uniform magnetic field. If a charged particle enter in this uniform magnetic field, let us suppose that this is a charged particle. It is moving with velocity v. When this charged particle moving in a uniform magnetic field, then it will experience a force and it will follow a parabolic path. Again, this is the velocity. Again, it will follow a parabolic path. Again, at this point, it will again follow a parabolic path. Again, it will follow a parabolic path. This is the velocity. This is the velocity. This is the velocity. Okay. It will experience a magnetic field. जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर आएगी. यहाँ पे इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द टूवर्ड्स इनसाइड. तो ये अंदर की ओर जो है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सो मैग्नेटिक फोर्स हमने कल देखा था वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन ऑफ 90 डिग्री. सो वी हैव एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी. सो ये हमने ये कैलकुलेट किया था कल कि वो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इट मीन दिस शो दैट दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. दस द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी अंदर की ओर लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन भी अंदर की ओर लगेगी. तो ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स. ओके, इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. दस द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर. तो एट लास्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा उसका जो टोटल पाथ बनेगा वो सर्कुलर पाथ बनेगा. Now, if small m is the mass of the charged particle, let us suppose that m is the mass of this charged particle, and small r is the radius. Let us suppose that this is the ये आपके पास सर्कुलर पाथ आ रहा है, इसकी जो रेडियस आ गई r आ गई, m is the mass of the charged particle. So then the necessary centimeter force required by the charged particle to move in circular path. अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स क्या आएगी? नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स इट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर. तो सेंटीमीटर फोर्स आ गया आपके पास एम वी स्क्वेयर ओवर आर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ओके, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स. अब ये जो फोर्स मिल रही है वो कहां से मिल रही है? मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स से. लॉरेंट्ज फोर्स आपने पढ़ी हुई है, ये आपके पास होती है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी. ओके, तो ये जो फोर्स सेंटीमीटर फोर्स मिल रही है इसको वो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स से मिल रही है. नो इक्वेटिंग फ्रॉम 1 and 2, दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 and 2. अगर इसको फोर्स यहाँ से मिल रही है तो हमारे पास आएगा एम वी स्क्वेयर अपॉन आर. दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी. यहाँ से वी से वी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी. ओके, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. हमने कैलकुलेट कर लिया इसका रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. So this is the radius of the circular path, and this show that radius of circular path is directly proportional to speed of the particle and mass of the particle. तो speed of the particle के ऊपर और mass of the particle के ऊपर directly proportional आता ही है. Now time period of charged particle is, अब time period कैलकुलेट करना है. So time period कितना आएगा? T is equal to distance upon speed. Distance upon speed. So distance कितनी आपके पास आ रही है? This is the distance, means this is the circumference. Circumference of circle to the speed. आपने ये फॉर्मूला लगाना है. सो टी वी हैव टी इज इक्वल टू डिस्टेंस, सर्कमफेरेंस आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर ओवर वी. ओके, सो अब हमने क्या करना है, इसकी आर की वैल्यू हमारे पास है, इसको पुट कर देना है. तो ये बनेगा 2 पाई अपॉन वी इंटू एम वी अपॉन क्यू बी. वी से वी कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी. 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आपके पास आ जाएगा. नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज
नेक्स्ट आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितनी आएगी, इसको लिखेंगे न्यू से। न्यू इज इक्वल टू 1/t, एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, so this is equal to qb upon 2 pi m. So this will be the frequency of charged particle. So this shows that the time period is independent of speed of particle and the radius of circular path. तो आपके पास जो क्वेश्चन आता है आपके पास ऐसे प्रूव करने के लिए आता है, show that the time period is independent of speed of the particle and radius of the circular path. देखो टाइम पीरियड में ना तो रेडियस आ रही है ना स्पीड आ रही है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ। अब हम आगे निकालेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू की वैल्यू आपके पास आ रही है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। दिस इज नोन एज ज़ायरो फ्रीक्वेंसी, ZYRO frequency. So this is all about when a charged particle is moved at right angle to the magnetic field. So this is our second part. So next part is when a charged particle moves at any angle other than 0, 180 degree and 90 degree. हमने तीनों केस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम कोई एंगल थीटा लेंगे कि when a charged particle moves with velocity v at an angle theta. So let us suppose that a charged particle is moving with velocity v at an angle theta. Okay, so जब मूव करेगा it will follow a parabolic path, उसका जो पाथ है वो उस तरह से बनता जाएगा। This is the path of the charged particle. अब ये इसका जो है वो पाथ बन रहा है। Okay, this is along x axis, this is y axis, this is z axis. Now v resolve into two components. First component आपके पास आ जाएगा vx is equal to v cos theta. सेकेंड कंपोनेंट इस साइड आएगा वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। हमने टू कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर लेना है, वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा। ओके, सो वी साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर साइड आएगा आपके पास, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सिंस द चार्ज पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी वी कॉस थीटा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो सिर्फ इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हमने यही वेलोसिटी लेके चलना, बाकी वेलोसिटी नहीं लेके चलनी कोई भी। सिर्फ वी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, देखो जो चार्ज पार्टिकल वी कॉस थीटा है इसके साथ जब मूव कर रहे हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि वो चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। तो उसको इस ये जो है इसका जो रिजल्ट आएगा वो टोटली जीरो आएगा, इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, फोर्स उस केस में आएगी जीरो। अब हमारे पास सेकंड कंपोनेंट आता है वी साइन थीटा। सिंस वी साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर टू बी, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, सो इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स अंडर द इफेक्ट, अंडर दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल टेंड्स टू मूव इन सर्कुलर पाथ। तो सिर्फ यही फोर्स है जिसके कारण जो है चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इस फोर्स के कारण जो आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रही है, इसके फोर्स के कारण कोई चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। नाउ as you know that centimeter force required to move in a circular move a charge particle to move in a circular path, तो उसको सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है। सेंटीमीटर फोर्स आपके पास आती है एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो यहाँ पर आएगा एम वी साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर आर। दिस इज इक्वल टू लॉरेंस फोर्स आती है आपके पास क्यू वी बी साइन थीटा, तो आ जाएगा क्यू वी को लिखेंगे वी साइन ऑफ थीटा इंटू बी साइन ऑफ 90 डिग्री। फॉर्मूला आपके पास था एम वी स्क्वायर ओवर आर, जैसे हमने ये फॉर्मूला लगाया था एम वी स्क्वायर आर। अब वी की जगह हम वी साइन थीटा पुट करेंगे, वी की जगह वी साइन थीटा पुट करेंगे, और ये बी वाला जो आ रहा है और दोनों के बीच में जो एंगल बनता है 90 डिग्री बना, तो यहाँ 90 डिग्री पुट कर दिया। सो दिस विल बी इक्वल टू एम वी साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर, अब यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से हमने निकालना है आर की वैल्यू, तो आर को ऊपर ले जाते हैं, बाकी टर्म नीचे ले आते हैं, क्यू वी साइन ऑफ थीटा। सो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक हमारे पास बचेगा रेडियस इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा ओवर क्यू। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ।